This is All India Radio. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the 36th National Games 2022 being held in Gujarat. 36th National Games Gujarat 2022. Kerala wins 2 golds in women's kayaking and canoeing 200 meters sprint singles. Maharashtra bags golds in rhythmic yogasana both in men and women. In hockey, Haryana women beat Punjab and Karnataka men defeat UP to capture golds. West Bengal boys outplay Kerala and Manipur girls defeat Odisha to win golds in football. Services Sports Control Board remains at the top in the medal tally. Good evening and welcome to the highlights for today from the National Games 2022. Today is the penultimate day of the 36th National Games 2022, and anything which has a beginning must have an end. So we have almost reached to the concluding day. But for a sports person, there is never an end, as the game must go on. Many athletes shared their views saying that after getting back, they would start preparing for the next upcoming event. This is how life goes on. Only the flowing waters remain pure and transparent. To have a glimpse of this transparency of life, let us go to Transstadia Ahmedabad for Yogasana. Shri Krishna glimpses over today's happenings. रंग बिरंगी आकर्षक वेशभूषा, संगीत की सतरंगी छटा, ग्रुप में तरह तरह के संयोजन और पलक झपकते कठिन से कठिन योगासनों की विभिन्न मुद्राएं, इनका ऐसा सुखद संयोग कि दर्शक पलक झपकाना भी भूल जाएं। यही कहा जा सकता है ट्रांस स्टेडिया में चल रहे आर्टिस्टिक योगासन ग्रुप के प्रदर्शनों को देखकर। महिलाओं के वर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया महाराष्ट्र की टीम ने। प्राप्ति किनारे हमारे यहाँ 10 दिन के लिए कैंप लगा था, उसमें हमने सुबह शाम हर वक्त कैंप के लिए आसन और डांस की प्रैक्टिस बहुत की है और इसी वजह से आज हमें फल मिला है इसका। सिल्वर गुजरात और ब्रॉन्ज मेडल तमिलनाडु के हिस्से में आया। जब महिलाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हों, तो भला पुरुष कैसे पीछे रह सकते हैं। पुरुषों के आर्टिस्टिक योगासन ग्रुप्स में एक बार फिर महाराष्ट्र ने अपनी विजय पताका फहराई और सोना अपने नाम किया। मनन कासलीवाल 10 डेज कैंप था हमारा ग्रुप में, वहाँ पे हमने पूरी प्रैक्टिस की थी इसकी। नितिन तानाजी पवड़े, थोड़ा टेंशन होता है पर एक बार स्टेज पे गए तो सब भूल जाते हैं, सब बराबर करना यही धन है और सब बराबर कर देते हैं। हरियाणा को सिल्वर और गुजरात को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। योगासन को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। आगे और कैसे बढ़ेगा, बता रहे हैं नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष उदित सेठ। हमने एक टूल किट बनाई है, एक करिकुलम होगा, स्कोरिंग सिस्टम होगी, इम्प्लीमेंट्स होंगे, कोच मैनुअल्स होंगे, एजुकेशन भी होगा, इवैल्यूएशन भी होगा। योग की जो इंडस्ट्री बनेगी तो हर एक देश में हमारे एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारे कोचेस को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमको सपोर्ट भी कर रही है। ट्रांस स्टेडिया से श्री कृष्ण। From the luminance of soul, we move to the crystal waters of Sabarmati. The waters hosted the canoes this morning. Over to Vivek Wankhere for an eyewitness account. Today was the final day for the canoe sprint here at Sabarmati riverfront. Various finals in different disciplines were held here. In the women kayak single 200-meter final, Parvati Ji from Kerala won the gold, Orissa won the silver, Andaman and Nicobar won the bronze. Parvati Ji from Kerala spoke to All India Radio. मुझे गोल्ड मेडल जीतने के बहुत खुशी हो गया। अभी एशियन गेम्स में ट्रायल आ रहे हैं, उसमें टारगेट करें। In the women canoe single 200-meter final, Megha Pradeep from Kerala won gold, Odisha bagged silver, followed by Uttar Pradesh winning the bronze. In the men kayak single 200-meter final, Vishnu Raghunath from Services won the gold, Orissa won silver, Madhya Pradesh bagged the bronze. Vishnu Raghunath. मैं नेशनल गेम्स के लिए 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसका रिजल्ट मेरे को अच्छा मिल गया। मैं मेहनत किया, वो मेरे को भगवान दिया। भी मेरा टारगेट एशियन गेम्स है, उसके लिए मैं इंडिया के लिए एक मेडल जीतना है, वही मेरा सपना है। And that's all for canoe sprint. On this riverside, soft tennis matches reached their culmination today morning. Vivek has more on that. For soft tennis, it was the final day today. Various quarterfinals, semi-finals and final were held in the individual mixed doubles category. In the quarterfinals, Madhya Pradesh won over Tamil Nadu, Maharashtra won over Chhattisgarh, Delhi defeated Haryana, whereas Gujarat won over Kerala. In the semi-finals event, Madhya Pradesh won over Maharashtra and Delhi lost to Gujarat. And in the finals, Adya Tiwari and Jay Mina from Madhya Pradesh defeated Hetvi Chaudhary
and Aniket Chirag Patel from Gujarat, thereby winning the gold. Gujarat won silver, whereas Maharashtra and Delhi won the bronze. Adya Tiwari and Jay Meena from Madhya Pradesh spoke to All India Radio. मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने ये गोल्ड मेडल अपने प्रदेश के लिए जीता है और आज का काफ़ी स्ट्रगल वाला मैच था क्योंकि काफ़ी इंटेंस सिचुएशन हो चुकी थी। मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो काफ़ी अच्छा खेले। Very wonderful match because so many intense situations was suddenly created in between the match. My partner struggled hard in the match and she performed very well. And that's all for soft tennis. This is Vivek Wankhede for All India Radio. On this land of Bapu, we happen to rejoice, celebrate and achieve. Let's seek his blessings and go over to Dandi and remember the father of our nation. Sanjay Vyas takes us to the salt waters of Dandi near Surat. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र में दांडी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। अंग्रेजी शासन के क्रूर और अमानवीय तंत्र का प्रतीक था नमक कानून। अंग्रेजों ने इस जरूरी चीज के लिए बेतहाशा कर बढ़ा दिया था। गांधी जी ने इसके विरोध के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 80 लोगों के साथ पैदल यात्रा निकाली, जो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। रास्ते में लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और इसने एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया। ये यात्रा 24 दिन और 241 मील की थी। 5 अप्रैल को दांडी में जिस सैफी हाउस में गांधी जी ने रात्रि विश्राम किया, वो जगह अब राष्ट्रीय धरोहर है। गाइड कपिल पटेल। धर्मगुरु थे दाऊदी वोहरा, उनका नाम था सिराजुद्दीन वासी से उनका ये बंगला है। 5 अप्रैल को जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे दांडी में, वो महात्मा गांधी को लेकर आए यहाँ पे और उनको रिक्वेस्ट किया यहाँ पे रुकने के लिए कि बापू आप मेरे बंगले में रुकिए। तो वो रुके थे यहाँ पे। जब भारत आजाद हुआ तो सिराजुद्दीन वासी से ने बोला कि अब ये मकान मैं देश को समर्पित करता हूँ। 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी ने दांडी के समुद्र में नहाकर रेत से मुट्ठी भर नमक उठाकर आतताई नमक कानून को तोड़ दिया। इस स्थान पर अब भव्य राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह केवल नमक कानून तोड़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि पदयात्रा में उन्होंने अस्पृश्यता, शराबबंदी, कौमी एकता जैसे मुद्दों को उठाकर इसे व्यापक आधार दिया था। भारत की आजादी के इतिहास का ये स्वर्णिम पृष्ठ भविष्य की कई वैश्विक क्रांतियों और आंदोलनों की प्रेरणा रहा है। बापू को नमन। दांडी से मैं संजय व्यास। Now let us move to Rajkot to have a feel of speed and skill of our national game hockey. Over to Shahid Anwar. 36वें राष्ट्रीय खेलों की हॉकी में आंधी तूफान की तरह मैदान पर भाग रहे कदम जब पोडियम पर आए तो गर्व और खुशी से चेहरा चमक रहा था। मैदान पर बहाया पसीना काम आया, इनाम गले में पदक और नाम ही नाम। देश भर के हॉकी सितारे जरूर जमीन पर हुनर दिखा रहे थे, लेकिन जीत के बाद उनके हौसलों की उड़ान 7वें आसमान पर थी। मेंस हॉकी में गोल्ड मेडल की हकदार बनी कर्नाटका की टीम। महिला वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता रही हरियाणा। दिन में 3:30 बजे मेंस हॉकी के फाइनल में मैच के दौरान धूप में नरमी थी, लेकिन खेल में गर्मी ही गर्मी। उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के बीच फाइनल मैच निर्धारित समय पर 2-2 की बराबरी पर रहा। फिर फाइनल में एक और पेनाल्टी शूटआउट ने रोमांच भर दिया। कर्नाटका ने 5-4 से जीत हासिल की। वी आर द चैंपियंस का शोर मैदान से उभर कर शहर में गूंजता रहा। कर्नाटक के कप्तान ओलंपियन SV सुनील। इससे ज्यादा अच्छा फीलिंग क्या होगा। गोल डाउन थे, उसके बाद हम लोग इक्वल किया तो फिर एंड ऑफ द डे हम लोग शूटआउट में जीते। हर कोई फाइनल इजी नहीं रहता, इससे बड़ा खुशी की बात और कुछ नहीं। कर्नाटक के कोच S विनय। It's amazing because it's been Karnataka after 21 years we came for the finals and we got the gold. Before we never won gold, this time we won the gold. दिन में 1:30 बजे सूरज सर पे था, गर्मी बरस रही थी। वुमेन्स हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम के सितारों से सजी हरियाणा ने पड़ोसी राज्य पंजाब की मजबूत टीम को 1-0 से शिकस्त दी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारतीय टीम के कप्तान सविता पूनिया। एंड तक हमने गिव अप नहीं किया और डेफिनेटली उनका डिफेंस आज अच्छा किया। विनिंग इज विनिंग। कोच मीनाक्षी खुश हैं। तो हमें कम बैक करना था और बताना था कि हरियाणा में अभी हॉकी बाकी है और हरियाणा भी बहुत लंबा जाएगा। पंजाब महिला टीम के कोच बलविंदर सिंह शमी। एक ने हारना था, एक ने जीतना था, वो दैट इज पार्ट ऑफ गेम। पर बहुत ही अच्छा हॉकी जो है वो आज गुजरात के लोगों को देखने को मिली। आज सुबह 9 बजे वुमेन्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच में मध्य प्रदेश की टीम पूरे लय में थी, वहीं झारखंड की टीम फीकी रही। मध्य प्रदेश ने 5-2
से जीत हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश की कप्तान इशिका चौधरी। इस मैच में काफी अच्छा फिनिश किया, काफी अच्छा प्रेशर था, पूरा दबा के खेला दूसरी टीम को, सबके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे। पुरुषों का ब्रॉन्ज मेडल मैच पेनाल्टी शूट आउट तक गया। ये तीसरा मौका था जब 36वें नेशनल गेम्स में रोमांच शिखर पर पहुंचा। महाराष्ट्र को हरियाणा पर 3-1 से जीत मिली। महाराष्ट्र के कप्तान ओलंपियन देवेंद्र वाल्मीकि। दिस टीम हैज लॉट ऑफ टैलेंट, एक दिन इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट करें। गोलकीपर सूरज करकेरा, जिन्होंने साहसिक बचाव किए और टीम को सूरज की तरह चमकने का मौका दिया। वही कल की मिस्टेक से हमने सुधार किया और आज अब रिजल्ट आपके सामने। तूफानी रफ्तार भले ही थम गई हो, लेकिन अगली मंजिल के लिए नया जोश, नया जुनून लिए खिलाड़ी रवाना हो रहे हैं। राजकोट के हॉकी ग्राउंड से मैं शाहिद अनवर। For a sight of intense action and force combined with precision, we take you to witness volleyball at the multipurpose hall Bhavnagar. Manish Bhattacharya ji has the details. इससे सुखद संयोग और क्या हो सकता है कि आज जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की धूम है, वहीं भावनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू के दोनों सेमीफाइनल मैच लड़कियों के ही आयोजित किए गए। भावनगर में आज शुरू के दोनों सेमीफाइनल मैच एक तरफा रहे और निर्धारित समय 2 घंटे से पहले ही सीधे सेटों में फैसले सामने आ गए। महिलाओं के पहले सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल ने राजस्थान को सीधे सेटों में 3-0 से मात दी। पिछले 2 दिनों से पश्चिम बंगाल की कप्तान रुखसाना खातून आकाशवाणी के सामने किए गए दावे को सच करने में कामयाब सिद्ध हो रही हैं। बहुत ही तैयारी करके रखे, क्योंकि पहला ही मैच हमारा केरल के साथ था, तो हम लोगों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। पर अभी कुछ मैच खेलने के बाद हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि कौन सी टीम के साथ कैसे खेलना है। हम लोगों ने पहले से योजना बनाई थी, जो भी हमारे सामने आएंगे उसके ऊपर प्रेशर डाल के रखेंगे ताकि हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। तो इसलिए हम लोगों ने चाहा तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लीड लेके खेलने की कोशिश की, तो वो हमारा काम आया। लंबी कदकाठी की केरल की महिलाओं के सामने हिमाचल प्रदेश की लड़कियां कोई कमाल न दिखा सकी। ये मैच भी एक तरफा रहा और केरल ने धड़ल्ले से फाइनल में जगह बनाई। कप्तान अश्वथी। Today we are very happy that we all played well because yesterday we could not play our best as a team. So today we improved our game. Everything was good. Really attack, block, defense, everything was fine. So we are really happy for that, and we also thank our coaches and all our officials for that, for supporting us. पुरुष वर्ग में पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज हरियाणा और तमिलनाडु के बीच हुआ। पहले 2 सेटों में आसानी से जीत हासिल करने के बाद हरियाणा को मानो तीसरे सेट में तमिलनाडु का एक नया चेहरा नजर आया। तमिलनाडु की टीम मानो मैच में वापस आ गई हो। मैच में रेफरी के एक निर्णय के बाद हुड़दंग की स्थिति पैदा हुई और गुजरात पुलिस के कर्मचारियों को भी स्टेडियम में बुलाया गया ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न घट जाए। अंततः तमिलनाडु ने हरियाणा की टीम को 3-2 से पराजित किया। कप्तान अश्विन। भावनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आकाशवाणी के लिए मैं मनीष भट्टाचार्य जी। The force of volleys softened into softball feats at the IIT Stadium, Gandhinagar. Lemchen Pom with the roundup on softball and triathlon events concluding today. This is one of the best ever triathlon happening in India. Giving some statistics on triathlon, we have Hari Prasad, competition manager. We concluded today with the mixed relay event where Tamil Nadu won the gold medal, followed by Gujarat and then Manipur. Prekna Mohan, who back-called in individual and silver and mixed relay. I continued my training in London and then I came back specially for the national games since they were happening in my home state. It's so refreshing and overwhelming to see so many youngsters and kids wanting to take up triathlon. I'm Natasha. I'm from Team Goa. We came 9th overall. People I look up to, the triathletes I look up to, they were all here. Softball played by 10 states. These national games culminated today with All for Punjab winning over Kerala 6-0 in women's section, and in men's section Maharashtra back call Chhattisgarh 1-0. And Miss Nitnal Naran, I want to thank to her. She supported every moment. Myself Sumit Pradeep Thavelkar. I am from Jalgaon, Maharashtra. The final match was very tough because in every national arena tournament we are good fighters, and finally we are united, so we get a positive results. Lemchen Pom reporting from IIT Gandhinagar Canvas. The spectators enjoyed the action of the boxers at Gandhinagar and were seen in frenzy and loud cheering. Nitish Arora pictures the scene. All 4 women boxers from Haryana who played in the semi-finals today progressed into the finals. 2 boxers each from Punjab and Assam, 1 each from Manipur and Uttarakhand made it to the finals. In the finals of flyweight, it will be Meenakshi of Haryana versus Shobja Kohli of Uttarakhand. Meenakshi, कैसी रही आज की फाइट? इतनी ज्यादा टफ नहीं थी, 5-0 का था, गोल्ड ही लेके जाना है. Shobja Kohli of Uttarakhand
Uttarakhand. फाइनल है तो ज्यादा टफ रहेगा, बट मैंने पूरी इतनी मेहनत करी है. In the featherweight category, Poonam from Haryana and Mandeep Kaur of Punjab moved into the finals. Jasmine from Haryana and Simranjeet Kaur from Punjab also made it to the finals in the lightweight, and Sweetie from Haryana will fight with Commonwealth medalist Lovlina Borgohain in the welterweight category. For women, Ankushita Boro from Assam and Elena from Manipur made it to the finals. All 4 women boxers from Haryana in the finals. We could not but resist the temptation of talking to the coach of Haryana, Virendra Dangi. Opponents को क्या कहना चाहेंगे? बस ये तो मेहनत है जी, देखो मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे तो और आगे जा रहे हैं इसलिए, और अपोनेंट को भी बराबर की अपॉर्चुनिटी है, वो भी जीत सकते हैं, जो अच्छा करेगा वही जीतेगा. हमारे लिए सर्विसेज ही है ज़्यादा टफ अपोनेंट. बॉयज़ में हम नो डाउट सर्विसेज वाले अच्छे हैं, लेकिन गर्ल्स में हमारी पकड़ अच्छी रहेगी. In the men's boxing, the big news was loss of Asian and Commonwealth medalist and an Olympian Shiva Thapa from Assam to Akash of Services in the welterweight. 6 of the 7 semi-finalists of Services made it to the finals. We spoke to Itash Khan Muhammad, winner of the lightweight category. फाइनल के लिए बहुत अच्छा तैयारी है. अभी आज मैंने जो भी गलती किया उसको सीखूंगा और आगे वाले लास्ट फाइनल तक मैं इम्प्रूव करूंगा. Ankit from Haryana will fight against Avinash Chandel of Himachal Pradesh in the flyweight finals. काफी मतलब सालों के बाद मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. जितनी मैंने प्रैक्टिस करी है उससे तो मेरे को यही लगता है कि फाइनल्स में मुझे सोना ही लेना है. Husamuddin Muhammad of Services will clash with Sachin of Haryana in the featherweight finals. Vijay Kumar of Punjab will box with Itash Khan Muhammad of Services. Akash of Services and Sagar of Haryana will fight it out in the finals of the welterweight category. Malla Swamit Luanga of Mizoram will fight with Nikhil Dubey of Maharashtra in middleweight. Sachin Kumar of Services and Vineet of Haryana lock horns light heavyweight category. Sanjeet of Services and Naveen Kumar will fight it out for the gold in heavyweight. And finally, Narendra of Services will clash with Savan Gill of Chandigarh to lift the gold in the super heavyweight category. 5 in men and 4 in women, that is 9 golds in sight for Haryana and 6 in sight for Services. We meet tomorrow with the gold rush from the boxing ring. This is Nitish Arora from Mahatma Gandhi Mandir, Venue 2, signing off. From hard-hitting boxes to defensive judo techniques at venue number 2, Gandhinagar, SB Venkatram has the final outcomes. The 5th and last day of judo competition, for the first time ever in the National Games, saw a new event of mixed team comprising of 3 men and 3 women drawn from the top 8 teams of the country: Haryana, Kerala, Punjab, Gujarat, Rajasthan, Manipur, Delhi and Madhya Pradesh teams. Each team featured below 70 kg, above 70 kg and below 57 kg weight of the women team members, and below 73 kg, below 90 kg and above 90 kg weight of the men team members. In the final bout for mixed team gold medal bout, Punjab locked horns with Manipur. Punjab team members Ravneet Kaur, Avatar Singh, Kanwarpreet Kaur, Jatinder Singh, Navroop Kaur and Karanjit Singh Maan. Manipur's mixed team was led by below 63 kg gold medalist Sunibala Devi. The other team members Bir Kamal Singh, Roshni Devi, Jagadish Maitai, Kalpana Devi and Sheetal Singh. Punjab started well but couldn't resist for long enough, buckled under pressure to Manipur, who on this day emerged the champion team. I feel so excited that today this is the first time Manipur mixed team create a history in Indian judo. I as Manipur representing judoka feel very proud and feel very excited for winning gold medals in 36 national games in here Gujarat. Punjab team had to settle for a silver against a formidable opponent. Punjab's team member अगर गोल्ड मिलता सर, वो गोल्ड तो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट ही है, पोडियम का सेंटर है, वो उस जैसी खुशी तो थोड़ी ना मतलब सिल्वर में. ये तो अब हम हाँ भी मेडल के एक तरह की सेटिस्फेक्शन, हम मेडल के जा रहे हैं, लेकिन नेशनल गेम्स टीम चैंपियन, वो चैंपियन तो वही कहलाएंगे. Bronze medals were shared by Delhi and Haryana mixed teams. Delhi's Pinky Balhara, the 2018 Asian Games silver medalist in Kurash. मैं गुजरात के साथ ही तो होम क्राउड था उनका, तो शोर मचा रहे थे बच्चे, काफ़ी प्रेशर होता है. दिल्ली टीम पे काफ़ी प्रेशर था कि जीतेंगे या क्या करेंगे, लेकिन जीत गई. हरियाणा was the other bronze medalist. उम्मीद तो हमें गोल्ड की थी, बट हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, इसकी वजह से हमें 5 प्लेयर के साथ उतरना पड़ा, तो फिर थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया था, बट कोई बात नहीं. This is Venkatram reporting for the last time from Mahatma Mandir Convention Center for All India Radio. Wushu, also a martial art, saw the finals today. Players exhibited perfect defensive movements. Shalini Mittal
from Mahatma Mandir, Gandhinagar. 8 अक्टूबर से आयोजित वुशु प्रतियोगिताओं में कुल 15 पदक दांव पे थे। आखिरी दिन आज 9 गोल्ड मेडल्स का फैसला हुआ। ताउलू में चांगवन पुरुष में स्वर्ण जीता सर्विसेज के अंजुल नामदेव ने। इस तरह पुरुष ताउलू के सभी 4 स्वर्ण सर्विसेज ने अपने नाम किए। सर्विसेज के ताउलू चीफ कोच लोकेश कुमार। मेरे पास जो लड़के हैं हमारी टीम में ऑल आर इंटरनेशनल मेडलिस्ट, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट भी है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी है, वर्ल्ड चैंपियंस मेडलिस्ट भी हमारे पास है। ताउलू के चांगवन महिला वर्ग में स्वर्ण जीता अरुणाचल प्रदेश की नीमैन वांगसू ने। पुरुष सांडा में 5 स्वर्ण में से 56 पहाड़ वर्ग कैटेगरी का गोल्ड जीता जम्मू कश्मीर के अभिषेक जामवाल ने। अभिषेक ने अपना गोल्ड अपने गुरु और कोच को समर्पित किया। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने माँ बाप का, मेरे कोच श्री कुलदीप भांडू द्रोणाचार्य वाडी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, मेरे पीछे खड़े रहे और आज इस मुकाम पे मैं आगे कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आप है वुशु द्रोणाचार्य अवार्डी और नेशनल चीफ कोच ऑफ वुशु टीम ऑफ इंडिया श्री कुलदीप हांडू। इंडिया का जो रैंक जब हमने स्टार्ट किया था लगभग 60-70 में रैंक आता था, बट एट प्रेजेंट हमारा बेस्ट 5 में जो वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग है। तो वुशु एक प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स है। 60 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण हरियाणा के रवि पांचाल और 65 किलोग्राम का सर्विसेज के विक्रांत बालियान ने जीता। विक्रांत ने अपना फिटनेस मंत्र आकाशवाणी के साथ साझा किया। फिटनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि मसल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है इस गेम में, और फिटनेस में हम थोड़ा डाइट पे ध्यान रखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान रखते हैं, इंजरीज भी बचा के खेलना पड़ता है। तो धीरे धीरे जिम वर्कआउट हो गया, कंडीशनिंग हो गया और कभी रेस्ट भी जरूरी है। 70 किलोग्राम में यूपी के सूरज यादव और 75 किलोग्राम में स्वर्ण राजस्थान के मुकेश चौधरी ने अपने नाम किया। मुकेश चौधरी। नेशनल गेम्स में मेरा 2nd गोल्ड है। महिला सांडा में 2 स्वर्ण में 52 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण अरुणाचल प्रदेश की उनीलो तेगा और 60 किलोग्राम का मणिपुर की नावरम रोशिबीना देवी ने जीता। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री भूपेंद्र सिंह बाजवा आकाशवाणी के साथ। यहाँ जो गुजरात में ये नेशनल गेम कराया, इससे बच्चों को और ज्यादा मोरल बूस्ट होगा, जीतेंगे वो इंटरनेशनल, आगे जाएंगे नेशनल के बाद। इसी के साथ 36वें राष्ट्रीय खेलों में वुशु प्रतियोगिताएं आज संपन्न हो गयी। महात्मा मंदिर वेन्यू 3 से आकाशवाणी के लिए मैं शालिनी मित्तल। Training in wushu and other defensive martial arts is being imparted to our girls countrywide. We need to strengthen and empower our women. Only and only then we can progress. And friends, today is the International Day of the Girl Child. And this year, the theme is Our time is now. Our rights, our future. Let these words put us into action. Mahendra Singh Lalas has more to add. भगवत रावत की एक कविता का अंश है। लगभग 4 बरस की बिटिया ने माँ से हाथ फैलाते हुए कहा, दीदी की किताब में इतना बड़ा समुद्र है। माँ ने आश्चर्य जताते हुए कहा, अच्छा? हाँ, बिटिया ने कहा, देखो मैंने उसमें उंगली डाली तो भीग गई। बेटियां ऐसे ही एक बूंद, एक शब्द, एक सपने और एक एहसास में खोज लेती हैं अपना समंदर, अपना आसमान। देश की बेटियां अब देश के समंदर से लेकर देश के आसमान तक अपने शौर्य और समर्पण से नई गाथाएं लिख रही हैं। खेल इससे कहां अछूते रहेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में देश की बेटियों ने न जाने कितने सपने चुने और बुने। ये हैं हरियाणा की महिला हॉकी टीम की प्रशिक्षक और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मीनाक्षी। बीइंग अ गर्ल लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मैं भी जिस एटमॉस्फेयर से आई हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक गांव से है, और हरियाणा के गांव में लड़कियों को आपको पता है कि आज से अगर आप 10 साल पहले 20 साल पहले उठा के देखो तो इतना प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था एजुकेशन वाइज या स्पोर्ट्स वाइज। लेकिन टचवुड मैं लकी रही कि मेरे फैमिली का, मेरे फादर का ड्रीम था कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करे, और उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत किया। मैंने भी मतलब उनके सपनों को पूरा करने का काफ़ी मेहनत किया और मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेली। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया। बीइंग ए गर्ल बहुत ही प्राउड मोमेंट है, वो होती है हमेशा से, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और मैं बहुत लकी थी कि मेरे घर में वो चीज़ नहीं होती थी। बहुत से इंडिया में ऐसे हैं जो लड़कियों में भेदभाव होता है, तो मैं तो उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने दोनों बच्चों को सेम बराबर चीज से देखें। कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपनी बेटियों को पंख लगाकर उड़ते देखकर खुश होती हैं। आई एम आनल पटेल, मानाज मदर। मैंने कहा था कि गिव अप नहीं करना है, अच्छे से जो आपने सपना देखा है ओलंपिक्स का पूरा करो। आज मैं 12 सालों से माना के साथ ही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग उसके साथ रहती है। सो हाँ, सेक्रीफाइस तो होता है, बच्चा को उसका सपना पूरा करना है तो हम सपोर्ट करेंगे। मैं चारुश्री, मैं प्रत्याशा राय जो नेशनल स्विमर है हमारे देश का, इंडिया का,
मैं उसकी मदर हूँ। एक लड़की को बड़ा करना और उसको एक विजन देके आगे उसका अपना परिचय बनाना, ये सब चीजों का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में देना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं खुद एक बैडमिंटन प्लेयर थी, तो मेरे अंदर था कि मैं खुद नहीं खेल पाई थी, तो मेरे अंदर था कि मैं अपनी बच्ची को तो कुछ ना कुछ एक परिचय दिलवाऊंगी। ओनली 3 साल की बच्ची को मैंने लेके स्विमिंग पूल में डाला। पहले वो बहुत रोती थी क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कमजोरी थी बिकॉज ऑफ हर कैपेसिटी ऑफ लंग्स एंड उसके अंदर वो दर्द था। फिर भी उसने कोप अप किया और सबसे कम उम्र की उड़ीसा की 9 साल में उसने क्वालिफाई कर गई नेशनल के लिए। बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस जब आती है तो हमको लगता है कि हमको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, हमको पावरफुल करने के लिए चैलेंजेस भगवान हमको दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे। There was a lot of cheering and excitement on the deciding day in football at Transstadia Ahmedabad. Temchan Tiba has the report. Fit and fighting team Services beat Karnataka 4-0 in the 36th National Games men's football competition and took away the bronze medal this morning at the Transstadia Football Arena. Priya Darshan, the happy coach of the Services, said, "We have won by 4-0. That is a huge score. Previous match we have lost. Now my boy plays very well. Tactically we have done well. So in starting onward we put up the pressure and win the match." The skipper Nongmai Kapam, Suresh Mehta, said they were fully prepared for the bronze. ये मैच के लिए हमने जीतने के लिए पूरा मेहनत करके आया। गेम तो हर जीत ये होते रहे। हमारा दिन था। West Bengal beat Kerala 5-0 and bagged the gold in the final match here at the same venue, and Kerala settled for silver. West Bengal coach Biswajit Bhattacharya expressed his happiness on winning the gold. Kerala always a very fighting team and it's a very good team. And our boys last year they lost 2 times against the Kerala. I am too much cautious before started the matches, but unbelievable that our boys has played a wonderful match. But I didn't expect from them they played like that way. Really, I am very happy for them. Narohari Sista, the captain who scored a hat-trick in this final match, said, "Yes, obviously this is a big win for us, especially for my boys." Timjan Dipar reporting for All India Radio. The traditional Indian sport Malakham, which saw its entry into national games for the first time, generated a lot of interest amongst the spectators. Mahendra Singh Lalas takes us to Sanskar Dham, Ahmedabad. मलखम्ब अब देश के हर कोने में पहुंच चुका है। My name is Mallan G. Adityan. I am from Tamil Nadu, Malcolm team coach. Last 2 or 3 years, south side में more players, more state for participating is very good development because central government and state government full support. Akshata from Karnataka. I am girls team coach. We are trying to give the popularity to our sports. We are still working in this platform. मलखम्ब स्पर्धाओं के आखिरी दिन आज लड़कियों के वर्ग के 2 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। रोप का स्वर्ण पदक गया महाराष्ट्र की रूपाली गंगवाने को। ये इन खेलों का उनका 3रा स्वर्ण पदक था। 3 गोल्ड मिला और 1 ब्राउन मिला मुझे। मैं इतना प्रैक्टिस किया। मेरे पापा गुरु है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पापा के सपने देखा, उसके मैं आगे गई है। मैं लड़की लोग को बताएगी मेहनत करो और इंडिया का नाम बड़ा कर लो। पोल इवेंट में महाराष्ट्र का वर्चस्व तोड़ स्वर्ण हासिल किया मध्य प्रदेश की सिद्धि गुप्ता ने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एमपी के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता है और एक सिल्वर मेडल भी मैंने जीता है। मैं चाहती हूँ जो मलखम्ब है वो इंटरनेशनल हो और ओलंपिक तक जाए, उसमें भी मैं इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ। संस्कार धाम में मौजूद गुजरात विधानसभा के पूर्व स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी खुद मलखम्ब खिलाड़ी रहे हैं। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पोर्ट्स को एक यहाँ गुजरात में नाम दिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए खेल महाकुंभ। ये मलखम्ब जो है वो गुजरात की पहचान है, इस देश की पहचान है। स्पोर्ट्स के आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम इतने खुले हैं उनके समय से, तो यहाँ गुजरात में खेल तो बढ़ा ही है पहले से, इससे और ज्यादा जोर मिलेगा। आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। Now, V. Shivakumar presents the final medal tally for today with only volleyball and boxing remaining for tomorrow. A look at the medals tally now. Services are at the top with 56 gold, 34 silver and 30 bronze medals. Maharashtra is second with 38 gold, 38 silver and 62 bronze medals. Haryana is third with 34 gold, 33 silver and 39 bronze medals. Karnataka fourth with 27 gold, 23 silver and 38 bronze medals.
medals. Tamil Nadu is 5th with 25 gold medals, 21 silver and 27 bronze medals. Kerala is in the 6th spot with 21 gold, 17 silver and 13 bronze medals. Madhya Pradesh 7th with 20 gold, 25 silver and 20 bronze. Uttar Pradesh in 8th position with 20 gold, 18 silver and 17 bronze. Manipur 9th with 20 gold and Punjab 10th with 18 gold medals. So that was the roundup of the National Games 2022 for today. We will be with you again tomorrow at the same time. Till then, this is Sanjeev Dosaj signing off. 36 National Games Gujarat 2022. Those were the highlights of the day's events at the 36th National Games 2022 being held in Gujarat. Technical assistance KG Johnson and Prashant Vishisht. Script and narration Sanjeev Dosaj. Produced by Rakesh Jain and Sanjeev Dosaj. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Gujarat.